Psychology says that there are three things. There is this long-term memory, short-term memory, and core memory. My core memory I have developed as a person in conflict. 2010 में it was very very shocking while I was in my school, in my high school. और अचानक से हम लोग जब स्कूल से बाहर निकले, what happened, हमने गन शॉट्स सुने, टेयर गैस शेलिंग हुई. I was stuck. I just froze right in the middle of the road. And I couldn't program all of what was happening. I was just pushed inside a photostat shop. And phones वगैरह तो allowed नहीं थे. All I could hear were gunshots and tear gas shelling हो रही थी. उस टाइम पे मैं लैंडस्केप पेंट करती थी, उस टाइम पे मैं पोर्ट्रेट्स पेंट करती थी, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हो गया. आई डोंट नो व्हाट वाज दैट अ मोमेंट और व्हाट हैपेंड. आई स्टार्टेड पेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट. ये कैसे खून की नदियां हैं, ये कैसा धुआं बाजार में है, ये कैसा शोरो गुल है मचा, ये किसकी बुका बाजार में है, ये कैसा जनाजा चलता है, ये किसके जवां को मारा है, ये कौन बिलखता रहता है, ये किसके जवां को मारा है, ये किसकी ममता लूटी है, ये किसका जवां बाजार में है, ये कैसी खून की नदियां हैं, ये कैसा धुआं बाजार में है. वक्त की ज़रूरत रेवोल्यूशन है, मतलब और कोई रास्ता नहीं है. एक इनकलाब चाहिए आज के ज़माने को. और ये नेचुरल है. जब आप ऐसे माहौल में पैदा हुए हो, आप ऐसे माहौल में पले बड़े हो, तो आप पर गुलामी की जंजीरें हैं, तो आप पर एक ड्यूटी समझता हूँ मैं. और बहुत नेचुरल है. मतलब जब आप इन चीज़ों को फेस करते हो तो आपको ये मजबूर हो जाता है, आपका कलम भी मजबूर हो जाता है ये लिखने के लिए. This is called a monster in distress, and this is called a Sufi in distress. But I was born in Kashmir, and then my father at that time, he was working in Iran. So I spent the first 5 years of my life in Iran. Then my father decided that he wanted to come back. It was a curfew day, the very first day. It was a rainy day, and there were shoot and sight orders in place at that time. This army guy came into the bus and he was frisking, and my sister, she told my mother, "Don't worry, if this guy is, if you're scared of him, I'll beat him up." And the army man gave like a stern look. अपने बच्चे को चुप करके बिठा. Early works. This was the place I had to grow up in. It was very clearly evident that I was also constantly looking at the visual imagery in terms of the presence of armed forces. What is that? Got an appointment in an art college, and where I started teaching for 35 years. And one day during 89, when this militancy and the turmoil it started, so the whole setup got gutted down in fire. Well, I lost almost all the paintings, and then I had to re-establish myself. Then I started seriously painting, and I have been painting conflict for the past so many years. 2016 again was a very bad phase, which we have really experienced. Like, it's after the death of a militant known as Burhan Wani. At that time, almost the younger generation,
especially teenagers, like you can say 9-year-old and 10-year-old and all very small children on the streets pelting stones. And just to curb these people or curb these children, the authorities were using initially tear gas, and now they started using pellet guns. One day I went to the hospital and I saw full hospital filled with all these young boys and girls with pellet injuries. And some children, they had lost their eyesight. What I did, these digital works, as a protest. That's what artists can do. I witness and record the history, that's all. One day I was just surfing on my Facebook profile and I got a message from a person from a newspaper that there's a woman from Australia, she wants to work with you. And she approached me through my Facebook profile and she was like, I have seen your work, you work on conflict. I'm planning to come to India and I'll meet many Kashmiri artists. And would you like to join us in a core group called A Path with Art? हम लोगों को बोलते थे जो बनाना है बनाओ, whatever comes to your mind. तो कहीं ना कहीं 10 आर्टिस्ट में से 7 आर्टिस्ट ऐसे होते थे जो कश्मीर के रिलेटेड कुछ ना कुछ बनाते थे, वायलेशन बनाते थे. सो वो लोगों ने कभी बात भी नहीं की होती थी कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन ऑटोमेटिकली आ जाता था. बर्निंग चिनार, बाब बायर्स, ये सारा आ जाता था. सो इट मेड अस रियलाइज दैट इट इज़ इन आवर हेड. समटाइम्स व्हेन वी डू नॉट इवन स्पीक अबाउट सर्टन थिंग्स बट दे आर इन आवर हेड, वो आर्ट के थ्रू बाहर आ जाती है. कुनन पूरा मास रेप केस मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी, बट व्हेन आई रेड अबाउट इट इट ब्रॉट टीयर्स टू माय आईज बिकॉज दोज टेस्टिमोनीज वर हॉरिफाइंग, दे वर ट्रॉमेटाइजिंग, एंड मी बीइंग अ वुमन आई फेल्ट हेल्पलेस क्योंकि जस्टिस वाज डिनाइड टू देम. ओवर 80 वुमेन वर रेप्ड. दिस इज स्टूपिड मट्टू. I have this memory from my childhood. I was playing with my sister in the backyard and my sister was playing along. What happened? We heard a really big bang and she fell off and my mother took me in her arms and we went inside the bed jahan pe aap baithe the. And she continuously screamed at us. She was shouting at us ki put your head down because we were continuously hame gunshots sunai de rahe the. And my grandfather came. He was panting. He came rushing inside the house and was like encounter shuru ho gaya hai. हालात ख़राब हो गए. एंड दैट वाज द टाइम जब मेरी बहन को ट्यूशन से वापस आना था. एंड माई मदर वाज जस्ट स्केयर्ड टू डेथ कि उसकी बेटी की डेथ तो ना हो जाए अगर फायरिंग अभी हो रही. सो आई हैव स्टिल दैट मेमोरी एम्बेडेड इन माई हार्ट एंड आई वाज 7 or 6 years old. सो दिस हाउ मैं कैसे बड़ी हुई हूँ, मैं इसी कॉन्फ्लिक्ट में बड़ी हूँ. एंड व्हेन पीपल अक्यूज मी दैट यू आर अ ट्रेटर, यू आर एन एंटी नेशनल, आई एम सेइंग, मैं कहती हूँ कि मैं ट्रेटर नहीं हूँ. दिस इज व्हाट आई हैव सीन. आई वांट यू टू नो. असल में एक दादाजी का शेर याद आ गया मुझे. वो कहते हैं कि उठा हूँ मैं जिगर के खून से रंगीन कलम लेकर, बढ़ूंगा मौत की सूरत बगावत का आलम लेकर. मेरे दादाजी की डेथ हुई मैं बस 2 साल का था, लेकिन उनकी वो खुशबू घर में थी, शायरी वाली खुशबू. मतलब घर में लगता था कुछ शायरी माहौल सा, तो वो मेरे जहन में उतर गया. और यहाँ मेरे दादाजी दफन है. मुझे लगता है कि उनका हाथ है मेरे पीछे. कभी कभी मैं अटकता हूँ तो उनके नाम फातिया पढ़ता हूँ, फिर ठीक हो जाती है मेरी नज़म. यहीं पे पले बड़े हैं, यहीं बड़े हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये पानी, ये दरख्त, ये सारी चीज़ें हमारे दोस्त जैसे हैं. हम इनके साथ रहे हैं. एक टाइम में जब हालात बहुत ख़राब हो गए, फिर ये जगह पर कुछ नहीं होता था, तो हम सारे यहाँ बैठे होते थे. तो ये पूरा सर्कल ऐसे यहाँ बैठे होते थे, लोग गप्पे शप्पे मारते थे. शायरी भी चलती है यहाँ पे. यहाँ से स्कॉलर्स निकले हैं, यहाँ से सेंट्स निकले हैं पहले से.
और यहाँ की हवा में अभी भी उनका वो महसूस होता है. I am currently working on the portrait of Parveena Ahangar. She is called the Iron Lady of Kashmir, and she's been awarded with these numerous awards for her human rights efforts. And she heads the Association of the Parents of Disappeared. The idea was to sort of try and meet these different women who are either mothers or wives of individuals who were killed, who were murdered or hanged or were disappeared. But being some sort of an icon herself does not resolve her own crisis. ये मुसीबत का काज है, ये कश्मीर में एक अहम प्रॉब्लम है. ये ऐसा जुल्म किसी के साथ नहीं होना चाहिए. अगर मरा हुआ तो कम से कम डेड बॉडी मिलता है. उनको तसली है हमारी डेड बॉडी है, हमारी मालगुजार है. हर जेल ढूंढा, हर मालगुजार ढूंढा, हम किसके पास जाएगा? इंसाफ कोर्ट में मिलता, उधर भी कोई इंसाफ नहीं मिलता कोर्ट में. Couple of years ago, I went to Pratap Park and I did a sort of this in solidarity performance. She would tell me that I look like her son who was disappeared. So I took an image, a photograph of a disappeared son that she uses everywhere, and right next to it I put my own portrait, and I asked her to sort of strip the image slowly, the paper on top of the image, and it revealed these two photographs. And then immediately after that she made a statement. She was holding that placard and she was like, "This is my son who has disappeared, and this is my son who is still here." उस टाइम मैंने सोचा नहीं कि मतलब कि जीजी को कैसा लगेगा कि मैंने अपना फ़ोटो जावेद भाई की फ़ोटो के साथ रखा और फिर सब लोग उनके सामने. लेकिन पता नहीं मुझे क्यों उस टाइम लगा कि ऐसा करना चाहिए, ताकि तब मैं भी ये कहना चाहता था कि या बाकी लोग जो वहाँ पे भी थे कि इस दर्द में मतलब ये हमारा अपना दर्द है. ऐसा नहीं है कि आप ये अलग से लड़ रहे हैं या इनका एक अलग दर्द है. कहीं ना कहीं एक रिश्ता है. There is some sort of an empathy towards that. It's a shared suffering. 8-10 हज़ार फैमिलीज ऐसी हैं जिनके घर पे कोई ना कोई उठा है और वो डिसअपेयर्ड है. मतलब डिसअपेयर्ड मतलब पता ही नहीं है वो कहाँ पे है, वो जिंदा है, वो जेल में है, कहाँ पे. तो वो मेरे साथ भी हो सकता था या हो सकता है. Born and brought up in the same downtown area, and well, it was really amazing. The place was calm and closer to River Jahlim, really wonderful to be in those small and narrow lanes and all old houses. We used to have a lot of good memories during our childhood, and we used to really enjoy and go around freely. Our children haven't really seen much because they are also brought up in the same environment of conflict. Living on the main road, we have really witnessed some very bad incidents.
Like we have even see death of some few militants just outside our home. So that is the difference, because we really haven't seen much normalcy during this period. The birds, the silence, people walking by, they share smiles, witnessing life. There is this picture to Kashmir as well. Gar firdos barue zami ast, hami asto, hami asto, hami ast. It means if there is paradise on earth, it is here, it is here, it is here. And I do not think that this line suits Kashmir anymore. खूबसूरती तो काफ़ी है, लेकिन it is the most dangerous place to me because it is the most militarized zone. Over 500,000 troops are in Kashmir. It is a paradise that has been set ablaze. And when you paint burning of chinar leaves and the smoke, it gives a very beautiful effect, so especially in watercolor. Wherever you look, and every inch is a subject for an artist. So I don't paint anything beyond this, So whether it's realistic or abstract, so this is my inspiration. बाइक्स आगे हम बड़े होने लगे, फिर हम ऐसे ही निकलते थे, देखेंगे हम कहाँ पहुँचेंगे। हम माउंटेन टॉप बोलते हैं या कुछ हम समिट बोलते हैं, मतलब हमने खुद नाम रखे हैं जगहों के। अभी भी कश्मीर की बहुत ऐसी जगह है जिनको मैं खुद के नामों से जानता हूँ, मुझे पता ही नहीं है उस जगह का असली नाम क्या है। इसको हम हाइड आउट बोलते हैं। सब फ़ोन करते थे हाइड आउट आ जाओ, तो यहाँ आ जाते थे। तो यहाँ पूरा जब समर्स होते थे ग्रीन होता था, कुछ दिख नहीं रहा होता था वहाँ का, तो ऐसे उतरते थे, लगता था पूरा जन्नत में है। वहाँ वो होते थे बेरीज, तो फिर मैं और मेरे दोस्त छोटे खा रहे होते थे, फिर हम वो बेरीज, हम 1 घंटा, वो बुशेस होते हैं ना, वो पूरे बाग में फैले हुए थे, फिर हम उनके ऐसे चल रहे होते थे, यहाँ से हम ऐसे उन्हीं के साथ होते थे पूरे दिन, मज़ा आता था। उस तरफ वो मंदिर, इस जगह में क्या ख़ास है, यहाँ से देखो वो मंदिर है ना, वहाँ पर मस्जिद है, वहाँ पर गुरुद्वारा है, तो वो अच्छा ये है, मतलब सब लोग एक साथ, तो इस जगह में वो ख़ास है। लेकिन ऊपर आर्मी है। मैं खुद भी जब मतलब फ्रस्ट्रेशन की हद पे पहुंच जाता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट ये सारी चीज़ें, फिर इसमें आपको कॉलेज जाना है, फिर कॉलेज में पथराव हो रहा है, ये सारी चीज़ें, फिर मैं थक जाता हूँ, मैं कहता हूँ बस, फिर मैं जाता हूँ किसी जंगल वंगल में बैठने के लिए। शहीद यावर के घर से हम गए, जहाँ वो घर था ना, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में बीएसएफ का एक कैंप हुआ करता था बहुत पहले। तो वो बंदा जो वहाँ उस घर में रहता था, उसके बिल्कुल सामने में वो कैंप था, तो उसकी बहन एक बार आई थी, तो उस पर अटेम्प्ट टू रेप हुआ था, तो वो अपने बहन को बचाने के लिए निकला था, उसने उसको बचाया था, लेकिन उसको गोली मार दी थी। वो उसका घर है वहाँ पे।
तो वो मतलब ये मैंने क्यों कहा कहने के लिए, क्योंकि देखो जब आप घर से निकलते हो तो आपको ऐसी चीज़ें मतलब रास्ते में मिलती है, ये तुफैल मत्तू का घर है, ये इसका घर है, ये इसका घर है, तो मतलब ये नेचुरली आप पर एक इम्पैक्ट डालता है। मतलब ये क्योंकि हर कोई पूछता है ना आप क्यों ये कह रहे हो या आप क्यों ये लिख रहे हो या कुछ। तो हालांकि मैं मतलब पीस लविंग हूँ मतलब ज़्यादातर, लेकिन मैं अपनी असल से दूर नहीं जा सकता हूँ। मतलब जो रियलिटी है मैं उसे भाग नहीं सकता हूँ। मतलब ठीक है मैं थोड़ी देर साइड में बैठ के मतलब सोचूंगा किसी के बारे में, लिखूंगा उसको, लेकिन कितना भागूंगा मैं। मतलब मैं उन्हीं गलियों से चलता हूँ, तो इसलिए मतलब वो फूट जाता है, वो एहसास निकल जाता है। तो We're going to set up art camp, so this is the beginning. This is the first session that I'm going to do with the kids. I hope it turns out good. So how does it make you feel when you come across people who are of your age? आपकी एज के बच्चे जब आप उनको Facebook पे देखते हो, the non-locals, your own cousins who live in the Gulf or other countries or outside or even Delhi or Jammu, how does it make you feel? ठीक है? All right, just paint it up. Don't tell me, just paint it. I feel a bit tired. I don't really know. I mean, emotionally, it's quite a lot of mixed feelings. Thinking about it, it somehow does not resolve her own crisis that she is in. And then at the same time, sort of constantly thinking about what does it mean for me to sort of make some sort of an artwork out of it. आर्ट जो है ये आपको somehow heals you. जब कोई बाउंड्री नहीं होगी, जब कोई लिमिट नहीं होगी, somehow they will paint their mind. I do not really have any sort of expectation that it's gonna revolutionize everything and change. I also really believe that these kind of attempts, not just by me, by a lot of different artists who are kind of trying to deal with a lot of uncomfortable questions. It raises and starts some sort of a conversation, and hopefully that evolves into something positive for not just people who are suffering directly, but for everyone else here in Kashmir. Yeah, there is hope too, but let us see when. So we have been waiting for better times to come. So that's why I always paint at least one painting on hope. So when it comes, so let us see. Because we have been waiting for the past 27 years. So I keep on painting. एक नज़म है जिसका नाम रक्से इनकलाब है, द डांस ऑफ रेवोल्यूशन। ये सब लोग पसंद करते हैं। तो ऐसे शुरू होती है, ए परवानों जागो जागो देखो सब तारे जागे हैं, है उम्मीदे जिंदा जिंदा सब कल के हारे जागे हैं, जागा है रिंदो मैखाना बर बर के सच के प्याले हैं, हर हालत में सजदा करके तौहीदों के मतवाले हैं, ये खुद से नफरत का गलबा क्यों तुझ पे ऐसे तारी है, इतना काहिल क्यों है मुस्लिम क्यों चलना तुझ पे बारी है, ये कैसा हुलिया है तेरा किसने तुझको बहकाया है, क्यों तेरे दिल पर हर लम्हा ना उम्मीदी का साया है, क्यों भागा भागा फिरता तू अपने दिल के अरमानों से, दरिया पर चलने वाला था क्यों डरता है तूफानों से,
तू जुर्रत का अफसाना था, क्यों तेरा दिल घबराता है। मंसूर सा तू दीवाना था, क्यों दुनिया से शर्माता है। तू कैसे खुद को भूल गया, क्यों मरते मरते जीता है। क्यों शैतानों की महफिल में नफरत के प्याले पीता है। नफरत के प्याले दूर हटा, अब जाग जरा एहसास तो कर। कम से कम इसमें अहमद को अब मान तो ले, कुछ पास तो कर। आ देखे मस्जिद अक्सा से कैसी आवाजें आती हैं। आ देखें दिल के जख्मों को कैसे परवाजें आती हैं। आ देखें खैबर खंदक के विरसे का वारिस मिल जाए। जो बेटे माँ ने खोए हैं, हम सबको बारिस मिल जाएं। अब दूर नहीं वादे का दिन, उम्मीद उफक से आई है। वो देख पहाड़ों के पीछे तनवीर सफेदी छाई है। जंजीरें कटने वाली है, सूरज मशरिक से आएगा। हक का परचम लेकर सूरज फिर दुनिया पर छा जाएगा। परवाज करेगी अपनी सदा, ये ताकत है अरमानों की। आवाजें घर घर गूंजेगी एक दिन हमसे दीवानों की। एक दिन ढल का पानी अपनी इज्जत का गाना गाएगा। जहलिम अपनी गहराई को बहते बहते कह जाएगा। एक दिन ऊंचे पर्वत का दिल उड़ती चिड़िया बहलाएगी। और कोयल सच की खुशबू पर इंसाफ का गाना गाएगी। हम पूछेंगे तब झरनों से, था आजादी का मतलब क्या। उठ उठ के लहरें बोलेगी बस ला इलाहा इल्लल्लाह। शोभन्त लोबन सोन कश्मीर, जन्नत बेनजीर सोन कश्मीर। शोभन्त लोबन सोन कश्मीर, जन्नत बेनजीर सोन कश्मीर। शोभन्त लोबन सोन कश्मीर, जन्नत बेनजीर सोन कश्मीर। निशाद शालमर क्या छ शोभान, निशाद शालमर क्या छ शोभान। आशिक ٲسۍ तूर लारान, जन्नत बेनजीर सोन कश्मीर। शोभन्त लोबन सोन कश्मीर, जन्नत बेनजीर सोन कश्मीर। शोभन्त लोबन सोन कश्मीर, जन्नत बेनजीर सोन कश्मीर। शोभन्त लोबन सोन कश्मीर।